Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start chapter 5, and the name of this chapter is interrogative sentences. Okay, so let's start this chapter. A sentence that asks a question is called an interrogative sentences. A question mark is placed at the end of an interrogative sentence. Okay, so what are interrogative sentences? Any sentence in which any question has been asked. Okay, and you can easily identify any sentence that it is interrogative because you will see a question mark at the end of that sentence. Okay, like here you can see question mark, so these all are interrogative sentences. तो बच्चों, आज हम जो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं. अगर कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको दिया गया है तो उसके लास्ट में आपको एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर दिखेगा. जैसे यहाँ पे सारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है और इसके पीछे एक क्वेश्चन मार्क सबके पीछे है, तो ये सबसे ईजिली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कोई भी सेंटेंस इंटरोगेटिव है या नहीं है. Read and understand the following sentences. Assertive sentence, interrogative sentence. Isha is coming today. Is Isha coming today? These frames are beautiful. Are these frames beautiful? We can stand here and talk. Can we stand here and talk? Okay, so some assertive sentences are given and then its interrogative form has been made. So the first one is Isha is coming today. ईशा आज आ रही है. Is Isha coming today? क्या ईशा आज आ रही है? These frames are beautiful. ये फ्रेम्स बहुत सुंदर है. Are these frames beautiful? क्या ये फ्रेम्स सुंदर है? We can stand here and talk. हम यहाँ खड़े रह सकते हैं और बात कर सकते हैं. Can we stand here and talk? क्या हम यहाँ खड़े रह सकते हैं और बात कर सकते हैं? तो आप देखोगे कि यहाँ पे तो एक नॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है, जिसमें हम कन्वे कर रहे हैं और यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. शी मे स्पेंड द डे विथ हर फ्रेंड्स. मे शी स्पेंड द डे विथ हर फ्रेंड्स. तो वो अपना दिन अपने दोस्तों के साथ बिता सकती है. इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या वह अपना दिन अपने दोस्तों के साथ बिता सकती है. दे वर फ्रेंड्स. वो दोस्त है. वर दे फ्रेंड्स. क्या वह दे वर फ्रेंड्स. वह दोस्त थे. वर दे फ्रेंड्स. क्या वह दोस्त थे. तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है. तो ये सिंपल सेंटेंस है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसमें. In the above sentences, so in these above sentences, those written on the left side state or expresses something. Such sentences are statements or assertive sentences. So these are assertive sentences, okay, on the left hand side, and these expresses something. That means it just conveys something. It is telling about something, okay. So such sentences are called statements or assertive sentence. So that kind of statement is called assertive sentences. The sentences written on the right hand side ask something. So a question has been asked. Such sentences are called question or interrogative sentence. So these kind of sentences in which we are asking or some question has been asked, they are called interrogative sentences. तो बेटा assertive sentences आपको लेफ्ट हैंड साइड में दे रखे हैं. इसमें आप कुछ एक्सप्रेस कर रहे हो, कुछ बता रहे हो, कुछ कन्वे कर रहे हो, तो ऐसे को हम स्टेटमेंट्स या assertive सेंटेंस बोल रहे हैं, ठीक है. और जो आपकी राइट हैंड साइड में जो है कुछ पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसे सेंटेंस को हम क्वेश्चन या इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है. मूविंग ऑन टू पार्ट बी. Read and understand the following sentence. Assertive sentences, interrogative sentences. Varun knows Rajiv. Does Varun knows Rajiv? Sobit reads book. Does Sobit read book? So in this also you can see simple things are being conveyed, but in this we are asking a question. For example, Varun knows Rajiv. वरुण राजीव को जानता है.
डस वरुण नो राजीव, क्या वरुण राजीव को जानता है? तो क्वेश्चन हो गया ये। शोभित रीड्स बुक, शोभित बुक पढ़ता है, क्या शोभित बुक पढ़ता है? ओके, सो interrogative sentences in simple present or simple past tense are formed as follows: do, does, did plus subject plus base form. So before reading this you should know what are simple present tense. Okay, so for this I have written this for you. Simple present tense, subject plus verb s or es plus object. ओके, तो बेटा जो सिंपल प्रेजेंट है आपको ये पढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट होता क्या है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्मेशन क्या होगी? सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर, डूअर जो काम कर रहा है, ठीक है। वर्ब आएगा, वर्ब का मतलब होता है एक्शन। इसमें एस या ई एस आएगा, वो डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट के ऊपर। फिर ऑब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट में आपका ही, शी, इट या कोई नेम दे रखा हो, ठीक है, ही, शी, इट या कोई नेम दे रखा हो, तो आपको जो है वर्ब के साथ एस या ई एस लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि टीना टॉक्स पोलाइटली, टीना आराम से पोलाइटली बात करती है। तो देखो वर्ब बात करना एक एक्शन है ना, इसलिए वर्ब है। टीना डूअर है तो टीना सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है पोलाइटली, ठीक है। तो ये टीना जो है वो किसी का नेम है, इसलिए जो वर्ब है टॉक उसके साथ एस लगाया हुआ है, ठीक है। वो डिपेंड करता है एस या ई एस, जैसे आप पढ़ोगे तो आपको और समझ में आता चला जाएगा, ठीक है। बट मान लो अगर आपका जो है सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या कोई प्लूरल है, तो उस केस में आपका सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट वर्ब जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें एस या ई एस का यूज़ नहीं करना है। जैसे कि वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं, तो खेलना तो एक एक्शन है इसलिए वर्ब है, हम खेल रहे हैं तो ये सब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे वी है इसलिए प्ले लगाया हुआ है इसमें। तो ये दो थी आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्मेशन। तो अगर आपको किसी भी सिंपल टेंस को जो है क्वेश्चन फॉर्म में चेंज करना है तो आप क्या करोगे ये देखते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई नाम दे रखा है तो आपको क्वेश्चन बनाने के लिए डस का यूज़ करना है। जैसे कि देख लो, ही प्लेस फुटबॉल, ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, लगाना है पहले डस, उसके बाद ही। ये जो प्लेस है इसका एस या ई एस जो भी लगा होगा वो हटाना है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर क्रिकेट लिखना है, ठीक है। तो ये इस वे में आएगा। तो आपको बुक में भी आप देख सकते हो, देखो डस लगा हुआ है, फिर सब्जेक्ट है, फिर बेस फॉर्म है। यहाँ पे भी वही सेम है, डस लगा हुआ है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म का मतलब फर्स्ट फॉर्म है, फिर क्रिकेट लगा रखा है, फिर एक क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है, ठीक है। तो इस वे में आपको करना है। तो आप बुक में और भी एग्जाम्पल है, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सेकंड है डू कब लगाना है। अगर सब्जेक्ट आपका आई, वी, दे, यू है तो आपको डू लगाना है क्वेश्चन बनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट में। जैसे कि दे प्ले क्रिकेट, तो दे आ गया ना यहाँ पे, तो सबसे पहले आप डू लगाओ, फिर ये दे लगाओ, फिर प्ले, फिर क्रिकेट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका चलेगा, ओके। तो यहाँ पे भी आपका ऐसे ही है, देखो डू लगा रखा है, फिर सब्जेक्ट है, फिर बेस फॉर्म है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, देखो वरुण नोस राजीव, ठीक है। तो यहाँ पे नेम है ना यहाँ पे, इसलिए हमने क्या लगाना है, डस। वरुण, नोस की जगह नो लगाना है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है, फिर राजीव, फिर क्वेश्चन मार्क। शोभित रीड्स बुक, शोभित नेम है ना तो डस लगाना है, फिर शोभित, रीड्स की जगह आएगा रीड, फिर बुक्स, फिर क्वेश्चन मार्क। चारू एंड गरिमा लाइक्स क्रिकेट स्वीट्स, अब चारू और गरिमा दो है ना, दो तो प्लूरल हो गया, इसलिए हमने डू लगाया है। फिर चारू एंड गरिमा लिखा है, लाइक की जगह लाइक लिखा है, फिर स्वीट, फिर क्वेश्चन मार्क, ओके। मूविंग ऑन टू सिंपल पास्ट।
ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई नाम दे रखा है तो आपको क्वेश्चन बनाने के लिए डस का यूज़ करना है। जैसे कि देख लो, ही प्लेस फुटबॉल, ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, लगाना है पहले डस, उसके बाद ही। ये जो प्लेस है इसका एस या ई एस जो भी लगा होगा वो हटाना है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर क्रिकेट लिखना है, ठीक है। तो ये इस वे में आएगा। तो आपको बुक में भी आप देख सकते हो, देखो डस लगा हुआ है, फिर सब्जेक्ट है, फिर बेस फॉर्म है। यहाँ पे भी वही सेम है, डस लगा हुआ है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म का मतलब फर्स्ट फॉर्म है, फिर क्रिकेट लगा रखा है, फिर एक क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है, ठीक है। तो इस वे में आपको करना है। तो आप बुक में और भी एग्जाम्पल है, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सेकंड है डू कब लगाना है। अगर सब्जेक्ट आपका आई, वी, दे, यू है तो आपको डू लगाना है क्वेश्चन बनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट में। जैसे कि दे प्ले क्रिकेट, तो दे आ गया ना यहाँ पे, तो सबसे पहले आप डू लगाओ, फिर ये दे लगाओ, फिर प्ले, फिर क्रिकेट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका चलेगा, ओके। तो यहाँ पे भी आपका ऐसे ही है, देखो डू लगा रखा है, फिर सब्जेक्ट है, फिर बेस फॉर्म है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, देखो वरुण नोस राजीव, ठीक है। तो यहाँ पे नेम है ना यहाँ पे, इसलिए हमने क्या लगाना है, डस। वरुण, नोस की जगह नो लगाना है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है, फिर राजीव, फिर क्वेश्चन मार्क। सोबित रीड्स बुक, सोबित नेम है ना तो डस लगाना है, फिर सोबित, रीड्स की जगह आएगा रीड, फिर बुक्स, फिर क्वेश्चन मार्क। चारू एंड गरिमा लाइक्स क्रिकेट स्वीट्स। अब चारू और गरिमा दो है ना, दो तो प्लूरल हो गया, इसलिए हमने डू लगाया है। फिर चारू एंड गरिमा लिखा है, लाइक की जगह लाइक लिखा है, फिर स्वीट, फिर क्वेश्चन मार्क, ओके। मूविंग ऑन टू सिंपल, फर्स्ट यू शुड नो द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब बेटा जो भूतकाल है, जो जा चुका है, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ही प्लेड फुटबॉल, उसने क्रिकेट फुटबॉल खेला था, ठीक है। तो ये पास्ट की बात हो रही है, भूतकाल की बात हो रही है, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन में सबसे पहले तो सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है, ईडी फॉर्म, सेकंड फॉर्म आती है। जैसे कि ही प्लेड फुटबॉल, तो सब्जेक्ट चाहे कुछ भी होना, आएगा हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म। और ऐसे को क्वेश्चन में बदलने के लिए सबसे पहले आपको डिड लगाना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और फिर फुटबॉल लिखना है और फिर एक क्वेश्चन मार्क लिखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो डिड, सब्जेक्ट, फिर बेस फॉर्म। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। द कैडेट लव्ड देहरादून, तो देखो द कैडेट्स, ठीक है, द कैडेट्स लव्ड देहरादून। कैडेट्स जो ये आर्मी वाले होते हैं और उनमें होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं। तो ये देखो कैडेट्स है, तो ये प्लूरल हो, सिंगुलर हो, कुछ भी हो, लगेगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ईडी आ गया तो आपको समझ जाना ये पास्ट में दे रखा है, तो इस केस में आप हमेशा डिड आगे लगाओगे, फिर ये लिखना है द कैडेट्स, सब्जेक्ट है, लव्ड की जगह सिर्फ लव लिखना है, फिर देहरादून लिखना है, फिर एक क्वेश्चन मार्क लगाना है। द कैमल कैरीड आ हैवी लोड, तो ईडी आ गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो देखते ही समझ जाना कि क्वेश्चन बनाने के लिए आपको डिड लगाना है, फिर जो भी सब्जेक्ट है वो लिखना है, कैरीड की जगह फर्स्ट फॉर्म कैरी लगाना है, फिर अ हैवी लोड लिखना है, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस वे में आपको ये करना है, ठीक है। तो ये था आपका कैसे आप जो है एक सिंपल पास्ट टेंस को कैसे क्वेश्चन में बनाते हैं, ये आपने यहाँ पे सीखा, ओके। सो टुडे वी आर ओनली डूइंग पेज नंबर 20. In next class we will do page number 21 and the back exercise. I hope you understood today's class. Thank you so much. Have a nice day. Bye.